Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I am continuing with the matrix representation of linear regression model, and in the previous class we did the matrix representation, we did the assumptions of classical linear regression model, and today I am going to discuss with you OLS estimation in matrix form. Well, in the previous course of Introductory Econometrics, we have learned how can we how can we get the regression coefficients by using method of ordinary least squares. And today we are going to learn how can we represent or how can we get all those things in the matrix notation. Well, it's not very difficult, but the approach is quite different, so that's what we have to consider here. First of all, because to get OLS we have to have a sample regression function SRF. So my SRF is SRF, sample regression function is yi is equal to beta 1 cap plus beta 2 cap x2i plus beta 3 cap x3i, and it can go up to k variables, kth variable beta k cap xki plus u cap I. So we have k minus 1 explanatory variables and we have 1 explained variables. All in all we have k variables here, and ui represents the errors. And as we did in the previous class, the matrix representation of this function would be SRF in matrix form. The previous one is the scalar form, so SRF in matrix form is SRF in matrix form. It is vector y is equal to x into beta plus u cap, and it is beta cap. Y has order of n into 1, x has order of n into k, beta has order of k into 1, and u has order of n into 1. We have to keep these things in mind, because while solving the OLS estimation we would be requiring the order and significance of the order, because we know that when we are multiplying two matrices, the number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix, and the resultant matrix after the multiplication has the order such that it has number of rows from the first matrix and number of columns from the second matrix, right? So while solving, in some stages we would be using these properties of matrix multiplication. We would also be using some properties of matrix differentiation. जब वो आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा. अब मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन को हम प्रूव नहीं करेंगे, उनको एज ए प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे टास्क OLS एस्टिमेशन करने का है. मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन को हम लोग वेरीफाई करने जाएंगे तो एक बहुत लंबे रास्ते में चले जाएंगे, तो आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कोड करके यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैं बताऊंगा आपको जहां पे आएगा जरूरत. सो वी हैव दिस थिंग नाउ. आफ्टर दिस we have to find u cap. So u cap is y minus x beta cap, right? And one more thing I must tell you here, that basically u cap is a column vector also. U cap is a column vector which has elements such as u1 cap, u2 cap up to un cap. And if I find the transpose of u cap, I'll get a row vector. It will have u1 cap, u2 cap up to un cap, right? And now if you multiply u cap transpose with u cap, what are you going to get? Let us see. So if I multiply u cap transpose into u cap, I'll get u1 cap, u2 cap up to un cap, this row vector being multiplied by the column vector u1 cap, u2 cap up to un cap. So when you multiply, what do you get? You get a scalar quantity, and it is u cap transpose into u cap is summation
u cap I square, because u1 cap into u1 cap is u1 cap square plus u2 cap square plus u3 cap square plus dot dot to un cap square. So we are getting summation u cap I square. And in the method of ordinary least square, we have to minimize the sum of u cap I square. So basically we have to minimize this product. So let us find this product in metric form. Now u cap, as I mentioned, u cap is y minus x beta cap. So u cap transpose would be y minus x beta cap transpose. Now I hope you remember the properties of transpose. A plus b whole transpose is A transpose plus B transpose, and A into B whole transpose is B transpose into A transpose. I'll quote them here also, but I'm just giving you a review of the properties which you have learned while you were studying the matrix algebra in your MME course. So I have to find u cap transpose into u cap. So it will be, okay, before that I must expand this. So when I expand, I'll get this thing, y transpose minus x into beta cap transpose, and this is because we have A plus B transpose is A transpose plus B transpose, the property which I just mentioned. I have just written it over here. And this x into beta cap transpose, it will get reversed while taking the transpose. So I'll write for this y transpose minus beta cap transpose into x transpose, and this is because A into B transpose is B transpose into A transpose. So till now I think the things are clear, not very difficult. Okay, and now we have to, like as I mentioned, we have to minimize summation u cap I square, means we have to minimize u cap transpose into u cap. So u cap transpose into u cap is y transpose minus beta cap transpose into x transpose multiplied by y minus x beta cap. So we have to use the distributive property of matrix multiplication, and we have to multiply, we have to rather open these brackets. So first of all, I will be multiplying this y transpose with y, and I'll get y transpose into y. Then multiply this y transpose with x into beta cap, and you get minus y transpose into x into beta cap. Then you multiply this beta cap transpose x transpose into y, so you get minus beta cap transpose x transpose into y, and finally beta cap transpose x transpose into x beta cap. Minus minus plus beta cap transpose x into beta cap. So we have reached till here. Now I told you one thing, that we have to consider the properties of matrix multiplication, that when we are multiplying, the number of columns of first matrix should be equal to the number of rows of second matrix. This is the one thing. The second thing is the resultant matrix would have the number of rows from first matrix and number of columns from second matrix. स्टेटमेंट कई बार समझ नहीं आती है ठीक है, तो मैं जानता हूँ इस बात को, कई बार स्टेटमेंट समझ नहीं आता, तो लिखता हूँ. देखिए, A का ऑर्डर है n इंटू k, B का ऑर्डर है k इंटू p. फॉर एग्जाम्पल, A has order n into k, B has order k into p. So we can multiply because columns of first are equal to rows of second. और AB जो आएगा, AB का order होगा n into p. ठीक है, number of rows from first and number of columns from second. Now let us consider here this thing, that this y had order of n cross 1. Y is a scalar vector, y is a column vector, and it had order of n cross 1. So y transpose would have order of 1 cross n. So order of y transpose is 1 cross n. X का order था n cross k, तो ये n cross k है. इनके मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा? y ट्रांसपोज x का ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होगा 1 cross k. And beta cap has order of k cross 1. So this multiplication is possible because columns of first are equal to rows second, and multiplication
will have a scalar quantity because now its order is 1 cross 1. So this whole term y transpose into x into beta cap is a scalar quantity. It has order 1 cross 1. Okay, this is something which we need to observe. We have to keep this thing in mind. We need not to present this anywhere. कुछ presentation की जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है. और आफ्टर दिस देखिए इसका जो सेकंड जो टर्म है, ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे बीटा कैप ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई, इसको भी देखते हैं. बीटा कैप का ऑर्डर k क्रॉस 1 है. सो ऑर्डर ऑफ बीटा कैप ट्रांसपोज इज 1 क्रॉस k. x has order of n क्रॉस k, so x ट्रांसपोज is order of k क्रॉस n. इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, k के हट जाएंगे 1 क्रॉस n. y has order of n cross 1, so इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा 1 cross 1. So it is also a scalar quantity. It is also a scalar quantity. Both of these are scalar quantities. This is something which we need to observe and I will write them. Just I will directly write. ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैंने आपको सिर्फ समझाया है. What I will write, I'll write y transpose into x into beta cap has order of 1 cross 1, that is it is a scalar quantity. Also beta cap transpose into x transpose into y has order of 1 cross 1, that is it is also a scalar quantity. तो ये बात समझ आती है, दोनों स्केलर है. आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि उसमें a के 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, a इज इक्वल टू सपोज x, व्हाट इज a ट्रांसपोज, x ही तो रहेगा. तो अगर एक स्केलर वैल्यू है उसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो खुद ही आ जाएगा वापस, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है. ठीक है, इस बात ध्यान रखेंगे अभी हम. अब एक चीज और देखिए, ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास, इफ आई फाइंड इट्स ट्रांसपोज, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं तो व्हाट विल आई गेट, इसका ट्रांसपोज क्या होगा. देखिए if I find b cap transpose into x transpose into y whole transpose, आप जानते हैं a into b into c transpose क्या होता है, c transpose into b transpose into a transpose. ये प्रॉपर्टी पढ़ी आपने ट्रांसपोज की. So this will be y transpose into x transpose transpose into beta cap transpose transpose. प्रॉपर्टी कोड कर दीजिए, बिकॉज a into b into c transpose is c transpose into b transpose into a transpose. ठीक है, और ये y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज का ट्रांसपोज x आ जाएगा, बीटा कैप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बीटा कैप आ जाएगा. यानी दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस, ये इसका ट्रांसपोज है. और मैंने अभी बताया कि अगर स्केलर वैल्यू है तो उसका ट्रांसपोज खुद ही आ जाता है. तो इन दोनों का मतलब क्या है, सो दिस मीन्स देयरफॉर बीटा कैप ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज इनटू एक्स इनटू बीटा कैप, बिकॉज दोनों स्केलर है और ये इसका ट्रांसपोज भी है, बिकॉज स्केलर का ट्रांसपोज खुद ही रहता है, दोनों इक्वल आ जाएंगे. अंडरस्टैंड, क्लियर बात है, तो बहुत मुश्किल बात तो नहीं है इसमें. सो इसका मतलब ये है कि आई कैन रिप्लेस दिस टर्म बाय दिस टर्म. सो यू ट्रांसपोज यू कैप ट्रांसपोज इनटू यू कैप, या सिग्मा यू आई स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको आप यहां पे. thus sigma u cap I square is equal to u cap transpose into u cap is, this is y transpose into y. और क्योंकि ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, ये और ये इक्वल हैं, तो इसकी जगह मैं सेकंड लिख देता हूं, तो दोनों ऐड होकर ट्वाइस हो जाएंगे. ट्वाइस ऑफ बीटा कैप ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई, ट्वाइस ऑफ बीटा कैप ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई. मैंने इसकी जगह यही लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ऐड होकर ट्वाइस हो गया. और लास्ट टर्म है हमारे पास बीटा कैप ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स इनटू बीटा कैप प्लस बीटा कैप ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स इनटू बीटा कैप. ठीक है, सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ समेशन ui स्क्वायर.
समेशन ui स्क्वायर इन मैट्रिक्स फॉर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। यहां तक की बात क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी बात थी। अब हमको क्या करना होता है OLS के लिए, हम इस समेशन यू कैप आई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, बीटा 3 कैप। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है बीटा कैप, तो उसकी टर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे। और ये डिफरेंशिएशन मैं करूं उससे पहले मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन की मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देना चाहता हूं। मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रूव इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, हम मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको हम एज ए प्रॉपर्टी कोट करेंगे। मैं पहले बता देता हूं, फिर कोट करवाऊंगा आपको। अगर हमारे पास इफ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डेल A transpose into B by del A, this will be equal to B if A and B are scalars of order k क्रॉस 1। अगर A और B स्केलर्स हैं जिनका ऑर्डर k क्रॉस 1 है, तो del A ट्रांसपोज इंटू B बाई del A क्या होता है, B होता है, ठीक है, ये नंबर 1। और एक सेकेंड प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे, del A ट्रांसपोज इंटू A इंटू B विद रिस्पेक्ट टू A इज ट्वाइस ऑफ AB if A and B are scalars of order k cross 1 and A is a symmetric matrix। सर ये दो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन की, आप अपने पास एक बार नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन, या बीच में कोट करेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा मेरे को कि सर मैं अगर इसको यूज करूंगा तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि हम मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसको एज अ प्रॉपर्टी ही यूज करना है, ठीक है। चलिए, और पहली प्रॉपर्टी तो फिर भी बहुत आसान है, सेकंड में बहुत टाइम लग जाने वाला है वेरीफाई करने में, इसलिए अननेसेसरी टाइम में आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए उस तरफ जाए, और उसका कोई काम भी नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा आपको लेकर। अब मैं यहां पर करूंगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बीटा कैप। सो डेल यू कैप ट्रांसपोज इनटू यू कैप विद रिस्पेक्ट टू बीटा कैप। यहां फर्स्ट टर्म में देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें बीटा कैप नहीं है, तो अब ये कांस्टेंट कंसीडर की जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 माइनस। अब ये सेकंड टर्म देखिए, 2 को बाहर रखते हैं, डेल बीटा कैप ट्रांसपोज इनटू एक्स ट्रांसपोज वाई अपॉन डेल बीटा प्लस del beta cap transpose into x transpose into x into beta cap with respect to beta। मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी को वापस याद कीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई, del A ट्रांसपोज into B with respect to A होता है B अगर A और B स्केलर्स हैं ऑर्डर k क्रॉस 1 के। देखिए ये जो बीटा कैप ट्रांसपोज है ये A है मेरा, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या है, A का ऑर्डर क्या, बीटा कैप का ऑर्डर क्या, k क्रॉस 1 सेटिस्फाई होता है। x का ऑर्डर होता है n क्रॉस k, x ट्रांसपोज का होगा k क्रॉस n, y का है n क्रॉस 1, तो x ट्रांसपोज इनटू y का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा k क्रॉस 1। तो ये दोनों बीटा कैप और x ट्रांसपोज y, इन दोनों का ऑर्डर जो है k क्रॉस 1 है, तो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, -2 A ट्रांसपोज इंटू B जब आप करते हैं, अगर A ट्रांसपोज इंटू B का डेरिवेटिव करते हैं विद, तो आंसर आता है B, यानी x ट्रांसपोज इंटू Y, x ट्रांसपोज इंटू Y। याद कर लीजिए प्रॉपर्टी। देखिए मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, डेल बीटा कैप ट्रांसपोज इंटू x ट्रांसपोज इंटू Y अपॉन डेल बीटा कैप। तो ये तो टर्म A है और ये B है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, B, यानी कि x ट्रांसपोज इनटू y आना चाहिए, और 2 तो ऑलरेडी बाहर था और 2 बाहर रह जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट थिंग क्लियर। अब यहां देखिए सेकंड टर्म को देखते हैं इसको,
यहां पर ये जो b है, b का ऑर्डर क्या है? b का ऑर्डर है k क्रॉस 1। ठीक है, बीटा का ऑर्डर k क्रॉस 1 है। मैं डेल बीटा कैप में कर रहा हूं, मैं बीटा कैप में लिखना भूल गया हूं। बीटा कैप का ऑर्डर है k क्रॉस 1। प्रॉपर्टी ये है, a का ऑर्डर k क्रॉस 1 है, a इंटू b, ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी को जब करते हैं विद ए तो आता है ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, और ये बीच वाला जो ए है कैपिटल ए, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अब मैं वहां पे ये टर्म वापस दोबारा लिखूंगा, अगर यहाँ पे लिख दूं आपके लिए, डेल बीटा कैप ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू बीटा कैप अपॉन डेल बीटा कैप। कंपेयर करेंगे अगर आप, तो ए की जगह तो बीटा कैप है हमारे पास, ठीक है, ए की जगह बीटा कैप है, और ये वापस से बीटा कैप सेम मैट्रिक्स आगे, मगर फर्क नहीं पड़ेगा इस बात को कोई भी। और ये जो ए हमें सिमेट्रिक होना चाहिए, यहाँ पे आप जानते हैं एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स सिमेट्रिक होता है, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू ये जो सेकंड जो आपको वेक्टर दे रखा है बी, वो आएगा। यहाँ पे सेकंड भी सेम बीटा कैप ही है, मगर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सेम भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंट होने पर भी वही रहता है। अगर मान लीजिए बीटा कैप की जगह यहाँ पे सी होता, उसका ऑर्डर भी के क्रॉस 1 होता, तो सी आता आंसर में, जो भी यहाँ पे वेक्टर होगा के क्रॉस 1 का वही आंसर में आएगा। तो यानी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू बीटा कैप। अब आप यहां पर ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज कोट करेंगे, बिकॉज नंबर 1 जो ऊपर लिखी है एंड नंबर 2 जो ऊपर लिखी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज को यहां पर आपको कोट कर देना है। ठीक है, आप इनको कोट कर देंगे दोनों प्रॉपर्टीज को, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला होता है उसको पुट करते हैं 0। सो फॉर मिनिमाइजेशन, या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिख दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन, डेल यू कैप ट्रांसपोज इंटू यू कैप बाय डेल बीटा कैप शुड बी इक्वल टू 0, यानी -2 x ट्रांसपोज y प्लस 2 x ट्रांसपोज इंटू x इंटू बीटा कैप इज इक्वल टू 0। 2 दोनों साइड से कॉमन आके कैंसिल, माइनस एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई प्लस एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स बीटा कैप इज इक्वल टू 0। दिस इज समथिंग विच इज नोन एज द नॉर्मल इक्वेशन। आप जो स्केलर फॉर्म में पढ़ते थे वहां बहुत सारी नॉर्मल इक्वेशंस आती थी, जितने हमारे पास बीटा कैप्स थे उतनी नॉर्मल इक्वेशन आती थी, 1 फॉर बीटा 1, सेकंड फॉर बीटा 2, थर्ड फॉर बीटा 3, ऐसे। अगर मेरे पास वहां पे 3 वेरिएबल था तो 3 नॉर्मल इक्वेशन आती थी, 4 वेरिएबल थे तो 4 नॉर्मल इक्वेशन आती थी, जितने मेरे पास बीटा से उतनी नॉर्मल इक्वेशंस आया करती थी। यहाँ पे क्योंकि हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया इसको, तो एक ही इक्वेशन आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक्स ट्रांसपोज वाई उधर ले जाएंगे अगर, तो आई गेट एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स बीटा कैप इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई। अब आप जानते हैं कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़कर आते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, दिस मीन्स x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स करते हैं। यहाँ पे एक ही जगह x ट्रांसपोज इंटू एक्स है, तो प्री मल्टीप्लाइंग by x transpose into x inverse, so we get beta cap is equal to x transpose into x inverse into x transpose into y. So this is the matrix representation of OLS estimation. So if you have the data, अब आपके सामने जब डेटा होगा, x की वैल्यूज आपको पता होंगी, y की वैल्यूज पता होंगी, आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे x का, एक मैट्रिक्स बनाएंगे y का। वो मैट्रिक्स कैसे बनाना है वो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, और उनको फिर आप क्या करेंगे, उनकी वैल्यू से एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स का इनवर्स, एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसे कॉलम वेक्टर आ जाएगा k क्रॉस 1 का। उस कॉलम वेक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा बीटा 1 कैप की वैल्यू देगा, सेकंड एलिमेंट बीटा 2 कैप की वैल्यू देगा, ऐसे जितने एलिमेंट्स होंगे उतने बीटास की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। क्लियर होगी बात, राइट? तो अगर वो कहता है OLS एस्टिमेशन बताइए करके, तो एक रास्ता मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको स्केलर फॉर्म में भी कर सकते थे, जैसे हम लास्ट इंट्रोडक्टरी के कोर्स में, इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स के कोर्स में पढ़ कर आए, वैसे भी कर सकते थे। और वैसे अगर आप करते हैं, आप जो बुक रेफर करते हैं, मेनली जो आप बुक रेफर करते हैं गुजराती, तो उसने उस स्केलर फॉर्म में ही करके दिया हुआ है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे एक तो काम हमारा खत्म हो गया, हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में तो कर दिया,
स्केलर फॉर्म में करके लास्ट में आंसर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता वो भी कर सकते थे। कैसे, आइए देखते हैं। फिर से मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे पास SRF क्या है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है yi इज इक्वल टू बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप x2i प्लस बीटा 3 कैप x3i प्लस अप टू बीटा के कैप xki प्लस u कैप i। सो यहाँ पे u कैप i क्या होगा, yi माइनस बीटा 1 कैप माइनस बीटा 2 कैप x2i माइनस बीटा 3 कैप x3i माइनस अप टू बीटा के कैप xki। ठीक है। और OLS के लिए क्या करते हैं, हम एरर्स के स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं। सो फॉर OLS ऑर्डिनरी स्क्वायर मिनिमाइज समेशन u कैप i स्क्वायर यानी समेशन yi माइनस बीटा 1 कैप माइनस बीटा 2 कैप x2i माइनस बीटा 3 कैप x3i माइनस अप टू बीटा के कैप xki का स्क्वायर। अब इसको आप करते हैं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 कैप, तो आएगा डेल सिग्मा u कैप i स्क्वायर अपॉन डेल बीटा 1 कैप। में थोड़ा फॉन्ट छोटा करो लिखने का अपना, क्योंकि थोड़ी बड़ी टर्म है तो इसलिए एक स्क्रीन में आ जाए, इसलिए थोड़ा छोटा लिखूंगा अब मैं। देखिए मैं एक स्टेप भी यहाँ पर आपका स्किप करूंगा, मैं डायरेक्टली सीधा आंसर पे जंप करने की कोशिश करूंगा। तो अब ये डेरिवेटिव होगा कैसे, देखिए मैं कुछ शॉर्टकट यहाँ पे लेने वाला हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। क्या होगा कि पहले तो होल स्क्वायर 2 आगे आएगा, इसमें बीटा 1 का क्वेश्चन माइनस है, माइनस भी आगे आएगा, तो -2 टाइम्स, और ये समेशन पूरा एज इट इज। ठीक है। और समेशन में एक्सपेंड कर दूंगा तो समेशन yi माइनस बीटा 1 कैप का समेशन होगा, तो इसको मैं लिखूंगा बीटा 1 कैप प्लस बीटा 1 कैप, इट विल बिकम n बीटा 1 कैप माइनस बीटा 2 कैप समेशन x2i माइनस बीटा 3 कैप समेशन x3i माइनस अप टू बीटा के कैप समेशन xki। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2 कैप। सो आई विल हैव नाउ डेल समेशन u कैप i स्क्वायर अपॉन डेल बीटा 2 कैप विच इज अब यहाँ पे 2 आगे आएगा, और बीटा 2 कैप पे जब कर रहे हैं तो x2i मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वेरिएबल है समेशन के अंदर ही रहेगा, और माइनस साइन भी है तो -2 टाइम्स yi के साथ मल्टीप्लाई होगा x2i, तो समेशन yi x2i बीटा 1 कैप के साथ होगा, तो बीटा 1 कैप अब ऐड नहीं होगा, बीटा 1 कैप समेशन x2i मतलब n टाइम्स बीटा 1 कैप अब नहीं होगा, बीटा 1 कैप समेशन x2i माइनस बीटा 2 कैप x2i इंटू xy हो जाएगा xy स्क्वायर समेशन x2i का स्क्वायर माइनस बीटा 3 कैप समेशन x2i x3i माइनस अप टू बीटा के कैप समेशन x2i xki। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे डिफरेंशिएट इसको बीटा 3 कैप के रिस्पेक्ट में, बीटा 4 कैप अप टू बीटा के कैप। सो डेल समेशन u कैप i स्क्वायर अपॉन डेल बीटा के कैप, दिस इज बीटा के कैप के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा, -2 आगे आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ पे, और बीटा के कैप के साथ में कर रहे हैं तो xki मल्टीप्लाई होगा, तो -2 टाइम्स समेशन yi xki, yi को हमने xki से किया, फिर बीटा 1 कैप को xi से मल्टीप्लाई करेंगे, x2i को करेंगे xki से, x3i को xki से, अप टू xki इंटू xki। सो माइनस बीटा 1 कैप समेशन xki माइनस बीटा 2 कैप समेशन x2i xki माइनस बीटा 3 कैप समेशन x3i xki माइनस अप टू
बीटा के कैप समेशन एक्स के आई का स्क्वायर। और फिर हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सब डेरिवेटिव्स को पुट करते हैं 0। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ मिनिमाइजेशन, पुट del sigma u cap I square upon del beta 1 cap is equal to 0, del sigma u cap I square upon del beta 2 cap equal to 0 up to del sigma u cap I square upon del बीटा के कैप इक्वल टू 0। इन सबको 0 करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, इस फर्स्ट टर्म को जब मैं 0 पुट करूंगा, इसको ये जो फर्स्ट टर्म है, व्हेन आई पुट दिस इक्वल टू 0, 0 बाय -2 वो तो उधर चला जाएगा, और ये माइनस, ये समेशन y इधर रहेगा, बाकी सब टर्म्स माइनस में, ये इनको राइट साइड ले जाएंगे तो वहां जाके प्लस हो जाएंगी। सो आई कैन राइट इट एज समेशन yi is equal to n beta 1 cap plus beta 2 cap summation x2i plus beta 3 cap summation x3i plus up to beta k cap summation xki, राइट। ऐसे ही इस सेकंड इक्वेशन को जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहां भी -2 चला जाएगा 0 के नीचे, तो 0 हो जाएगा। इसमें ये टर्म लेफ्ट साइड रहेगी और ये सब माइनस की टर्म्स राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। तो समेशन yi x2i, समेशन yi x2i is equal to beta 1 cap summation x2i plus beta 2 cap summation x2i square plus beta 3 cap summation x2i x3i plus beta k cap summation x2i xki। ऐसे ही थर्ड के लिए yi x3i, फोर्थ के लिए yi x4i, अप टू इट गोज अप टू xki term. So summation yi xki is beta 1 cap summation xki plus beta 2 cap summation x2i xki plus beta 3 cap summation x3i xki, and it goes up to xki square तक, beta k cap summation xki square। थोड़ा टर्म यहाँ पे ऐसी है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर ना, मतलब क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें जो हैं मतलब क्योंकि डेरिवेशन है और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो आप ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्शन अगर हो जाएगी तो फिर मिस कर जाएंगे, तो वापस देखना पड़ेगा फिर वापस जाके आपको। हमने इन सबको 0 पुट कर दिया बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, और नेगेटिव साइड को उधर ले गए। अब अगर आप गौर फरमाएं तो जो लेफ्ट साइड है बेसिकली, मैं अगर आपको एक बस आपको वैसे लिखना क्या है, लिखना ये है। So in matrix form, these equations are in matrix form. These normal equations are x transpose into y is equal to x transpose into x into beta cap. डायरेक्टली लिख देना ये। आप अब x ट्रांसपोज इंटू y करके देखिएगा तो आपको ये लेफ्ट साइड मिल रही होगी, x ट्रांसपोज इंटू x इंटू बीटा कैप करके देखिएगा तो आपको राइट साइड की इक्वेशन मिल जाएंगी सारी। ये एक आप एक्सरसाइज करके देख सकते हैं, एज एन एक्सरसाइज इसको देखा जा सकता है, लेकिन ये आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है कि कैसे आ गया, ये ऑब्जर्वेशन की बात है सिर्फ, इट इज अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन लिखी नहीं जाती, वो सिर्फ आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो अब इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद वही है प्री मल्टीप्लाइंग both sides by x transpose into x, so we get x transpose into x inverse into x transpose into y is equal to beta cap. So basically this is the OLS estimation. आपको मैंने बताया कि आप जो प्राइमरीली जो बुक आप रेफर करते हैं गुजराती, उसने ये मेथड दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स अप्रोच को उसने इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया अपनी बुक में, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप मैट्रिक्स अप्रोच से भी कर सकते हैं, और क्योंकि गुजराती ने ऐसा लिखा है तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, सब करके स्केलर फॉर्म में करके लास्ट में रिजल्ट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, ठीक है।
अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो वो बात तो बहुत सिंपल है। फिर न्यूमेरिकल में तो क्या होगा, आपके सामने जो डेटा है वहां से एक्स वेरिएबल बनाइए, वाई वेरिएबल बनाइए, और फिर ये वैल्यूज एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इनवर्स की निकालिए, एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई की निकालिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, बीटा कैप की वैल्यू निकाल लीजिए। मेरा आज की क्लास का जो पर्पस था वो ओएलएस एस्टिमेशन आपको समझाने का था। अभी मैं क्वेश्चंस आज सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या प्लानिंग बनती है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जहां पर हम जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डेटा उठाएंगे और डेटा के अकॉर्डिंग जैसे आपको इक्वेशंस दी होंगी या एक्स और वाई मैट्रिसेस दिए होंगे और फिर बीटा कैप निकालना कैसे होगा वो करके दिखाऊंगा। उसमें कुछ क्वेश्चन में करके आपको जरूर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, मगर आज वो नहीं करने वाला। आज मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो कंप्लीट हो गया। मेरे को आपको ओएलएस एस्टिमेशन सिखाना था, तो मैंने आपको स्केलर फॉर्म में भी सिखा दिया। स्केलर फॉर्म में बता के लास्ट में जैसे आपको गुजराती ने कहा, लास्ट में रिजल्ट को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, और मैंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म में भी सिखा दिया, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन करके सिखा दिया जहां हमने ये पहले आंसर निकाला था ये वाला। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा एग्जाम में आ जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म से कीजिए। स्केलर फॉर्म से भी अगर आप करेंगे तो मैं नहीं समझता कि मार्क्स आपके काटेगा कोई। मैंने काटते हुए किसी को देखा नहीं, क्योंकि गुजराती ने ये दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? तो होपफुली बात आप समझ गए। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई, कोई क्वेरी है, कोई अनआंसर्ड बात रह गई है, तो देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।